हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो चैप्टर आज करेंगे 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, यानी देखा जाए तो संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक और चैप्टर कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, पार्लियामेंट्री form for the government of India. There is some important here. Parliamentary form of government in India. There is the most important topic here. Another important feature of the Indian political system is the parliamentary form of a government both at union and state level. There are two forms of government. There is important here. Presidential and parliamentary. There is important here. Presidential and parliamentary. It's a presidential system. There is a three organs of government are independent of one to another. There is the absence of the close relationship between the executive and legislatures here. The United Nations of the America has been presidential form to the government, but in the parliamentary form of government, there is a very close relationship between the executive and the legislatures here. United Kingdom has a parliamentary form of government. In fact, their constitution marker of India adopted the British model as a system of government that operate of Indian before 1947 was to be great extent quite similarly to the British parliamentary government. That's important here, parliamentary government in India. In India, we have a parliamentary form of government. Both are the center and state level. This is important. The parliamentary form of government both at a center and state level here. The Indian system reflected all the main feature of a parliament government as a close relationship between the legislatures and executives, and second, a responsibility of their executive to be legislatures, and executive have a head of the state as a nominal executive, and the council of minister headed by the prime minister as the real executive. This is important here. The prime minister as the real executive on this Indian government here. On your screen, there is a Parliament of India. There is the most important here. Parliament of India House. This is important. The first point here, close relationship between the legislatures and the executive here. In India, there is a close relationship between the executives, the council of minister with the prime minister at the head and the legislatures here. The parliament is only a leader of the majority party. Of collocation of the parties can be appointed as their prime minister. This is an important point here. The parliament only leader of the majority party, a coalition of parties can be appointed as the prime minister. All member of council of minister must be a member of parliament. It is only on the advice of council minister that the president can summon and the prevent the decision of the both house of parliament. And even dissolve there is a Lok Sabha, and all the selected member of parliament participate in the election of the president, and she can be removed from office only when there is implement
motion against his here is passed by the both house of parliament. And the next year, responsibility of executive and legislature here. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. It means that the responsibility of every minister is the responsibility of the entire Council of Ministers. It is responsible to be Rajya Sabha also. In fact, both the House have a power to control the Council of Ministers. And they do it by asking question and supplementary question on the policy, programs and functioning of government. They debate on the proposal of the government and also subject its functioning to the intensive criticism. They can move adjournment and the motion or calling attention notice. No bill tapped by the Council of Ministers can become a law unless it is approved by their parliament. The annual budget also to be passed by the parliament in the real term. The tenures of the Council of Ministers depend on the Lok Sabha. The Council of Ministers has to be resigned if it is lost the confidence of Lok Sabha, and which means there is support of the majority in that house. The Council of Ministers can also be removed from office by the Lok Sabha through a vote of non-confidence. This is important. The next point here, nominals and real executives here. Nominal and real executive. There are two parts of the executive in India, nominal executive and real executive. There is a president who is the head of the state in the nominal and formal executive. Theoretically, all the executive power are the vested by the constitution in the president of India. But it is a practice. These are not exercised by him or her. These are actually used by the Prime Minister and the Council of Ministers. The Council of Ministers with their Prime Minister at their head of the real executive. The President cannot act without their advice of their Council of Ministers. That's important. The President cannot be act without their advice of the Council of Ministers. The next year, Prime Minister as the real executive. It is the Prime Minister who is the pivot of the parliamentary executive. All the members of Council of Ministers are appointed by the President on the recommendation of the Prime Minister. The locations of profiles among the ministry is the prerogatives of Prime Minister, and she presides over to meeting of the cabinet, and it is the only link between to the Council of Ministers and the President. Any minister can be removed from office to be Prime Minister decided. When the Prime Minister resigns, the entire Council of Ministers has to be go. The parliamentary system in India has been functioning quite satisfactory. There is a parliamentary government in the state and also are structured on the pattern of the central government. The executive consists of the governor and the Council of Ministers with the chief minister as the head. Whereas there is a governor function as the head of the state, the chief minister and the council ministers act as the real executive. State legislatures are bicamerals, state assembly and legislative council here. In only a few states, in most of the states, these are the unicamerals legislative assembly here. आगे जो हमारे समक्ष आया है टॉपिक भारत में संसदीय शासन प्रणाली, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार की है। भारतीय राजनीतिक पद्धति की एक अन्य विशेषता इसकी संसदीय शासन प्रणाली है। यानी भारतीय राजनीतिक पद्धति की एक अन्य विशेषता ये भी है कि यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली के दो रूप होते हैं, एक अध्यक्षीय और एक संसदीय होते हैं। यानी देखा जाए तो इसका दो रूप होते हैं, एक अध्यक्षीय होते हैं, एक संसदीय होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंग एक दूसरे के से स्वतंत्र होते हैं। यानी देखा जाए स्थानीय शासन प्रणाली में सरकार के 3 अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। वहाँ कार्यपालिका तथा विधायक के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, किंतु संसदीय शासन प्रणाली में एक अटॉर्नी तथा विधायक के बीच संघीय संबंध होते हैं।
यानी देखा जाए तो इसमें कार्यान्वयन और विधायक के बीच संघीय यानी घनिष्ठ संबंध, यानी घनिष्ठ संबंध होते हैं, यानी काफ़ी गहरा संबंध होता है। यूनाइटेड किंगडम में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी यूनाइटेड किंगडम में देखा जाए तो वहाँ पर शासन प्रणाली, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अब कहते हैं वैसे तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ के लिए विशेष प्रतिमान को ही अपनाया, क्योंकि भारत में 1947 से पहले जो शासन प्रणाली चल रही थी वो काफ़ी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के सामान्य थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1947 से पहले जो शासन प्रणाली चल रही थी वो सारे के सारे ब्रिटिश शासन प्रणाली के अधीन थी, और भारत में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर शासन प्रणाली का रूप संसदीय थी। लेकिन भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर विधायक और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होंगे, यानी काफ़ी गहरा संबंध होंगे। किसके बीच? विधायक और कार्यकारिणी के बीच। कार्यकारिणी का विधायक के प्रति उत्तरदायित्व भी रहेगा, तो ये भी बात इसमें प्रावधान किया गया है। कार्यकारिणी में एक राज्य अध्यक्ष है जो नाम मात्र का प्रधान होता है, तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद भी होता है जो वास्तविक कार्यप्रणाली होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो है एक मंत्री परिषद होता है जो वास्तविक कार्यकारिणी होती है। यदि बात करें भारत की संसद की तो देख सकते हो कि भारत की संसद कुछ इस प्रकार से दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में इसका जो है अब शक्ल चेंज हो जाएगा, क्योंकि नए संसद बनाई गई है। तो आप दूसरा चित्र जो है देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो ये पुरानी जो है अंग्रेज़ों के समय बनाई गई संसद है जो आज तक चल रही है, लेकिन 2023 में जो है इसको बदलाव किया जा रहा है, एक नए संसद का निर्माण करवाया जा रहा है, तो वो आप उसको देख सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विधायक तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से विकसित होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विधायक तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध का विकास किस प्रकार से होता है। भारत में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, यानी काफ़ी गहरा संबंध होता है, और केंद्र सरकार की कार्यान्वयन में राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होती हैं। विधायिका अथवा संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा के प्रावधान किया गया है, यानी एक लोकसभा और एक राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि लोकसभा में जिसके बहुत अधिक बहुमत मिलता है उसी में से किसी एक व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य चुने जाते हैं बाकी क्षेत्रों से, वो सिर्फ संसद के सदस्य माने जाते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और सत्रवासन भी कराता है तथा लोकसभा का भंग भी करता है। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, यानी राष्ट्रपति को जो है जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर उसे पद से हटाया भी जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने का एक ही प्रावधान है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग दिया जाए, यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य अगर चाहेंगे तो जो है राष्ट्रपति को अपने पद से मुक्त करवाया जा सकता है, और राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग भी होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कार्यकारिणी के विधायक के प्रति उत्तरदायित्व। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कार्यकारिणी का विधायक के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व पूरी संसद परिषद और मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व होते हैं, यानी सारे मंत्री परिषद के अंतर्गत ही कार्यात होते हैं। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी होता है, और संसद के दोनों सदन मंत्री परिषद के नियंत्रण में ही रहते हैं। ऐसा करने के लिए वह सरकार की नीति, कार्यक्रम तथा उनके कार्य पर प्रश्न तथा अनुरूपक प्रश्न भी पूछते हैं। वे सरकार के प्रस्तावों पर वाद विवाद करते हैं तथा सरकार के कार्य को तीखी आलोचना भी करते हैं। वह स्थगत प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी पेश करते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत की गई विधायक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई विधायक संसद की अस्वीकृति के बिना कानून नहीं बनाया जा सकता है, और वार्षिक बजट भी
संसद के द्वारा ही पास किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि वार्षिक बजट जो है संसद के द्वारा पारित किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है, यानी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल जो है लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है, यानी सदन में बहुमत का समर्थन खो देता है, तो उसे त्याग पत्र देना ही पड़ता है और लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को जो है पदच्युत कर भी सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नामांतर और वास्तविक कार्यकारिणी, यानी नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारिणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में कार्यकारिणी के दो भाग हैं, एक नाम मात्र है, नाम मात्र कार्यकारिणी तथा एक वास्तविक कार्यकारिणी। राष्ट्रपति जो राज्य अध्यक्ष होता है नाम मात्र का होता था और औपचारिक कार्यकारिणी है। सिद्धांतमक संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित किया गया है, किंतु व्यवहार में उनका प्रयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। यानी देखा जाए तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता है। उनका वास्तविक प्रयोग जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। यानी भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं सिर्फ नाम मात्र का होता है, ठीक है। सारी शक्तियां जो होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंदर निहित होती है। अंत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। अंत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारिणी कहा जा सकता है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए आप समझ सकते हो कि भारत में राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसके पश्चात हमारे समक्ष प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारिणी होती है। कहते प्रधानमंत्री संसदीय कार्यकारिणी का धुरी होता है और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री के अनुशासन पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। मंत्रियों के बीच जो है विभागों का आवंटन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है, यानी जितने भी मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, सब के सब जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही पदों का आवंटन किया जाता है, पदों को जो है दी जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक को अध्यक्षता भी करता है, तो वह तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच का एकमात्र कड़ी है, यानी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री निर्णय से किसी भी मंत्री को पदच्युत किया जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री जब चाहे तभी जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री जब चाहे उसको उस पद से मुक्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र करने की सारी मंत्रिपरिषद भंग हो सकती जाती है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र करने से सारे मंत्रिपरिषद जो होते हैं भंग हो जाता है। अब इन विशेषताओं के साथ भारत में संसदीय प्रणाली जो है संतोषजनक ढंग से जो है क्रियाबंद हो रही है और राज्य में भी संसदीय प्रणाली की संरचना केंद्र की प्रणाली के अनुरूप ही है। वहाँ कार्यकारिणी में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कार्यकारिणी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्यपाल अध्यक्षता की भूमिका निभाता है तथा जो है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारिणी की तरह कार्य भी करते हैं और राज्य विधायक संसद की तरह कार्य भी करता है। और कुछ राज्य की विधायिका द्विसदनीय होती है, जिसमें विधानसभा तथा विधान परिषद का प्रावधान किया गया है और अधिकतर राज्यों में एक सदनीय यानी विधानसभा विधायकी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है इसके अंतर्गत। तो हमने हर एक बात को जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया, समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी पॉइंट व्यू से, एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए, सोचिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बार बार मैं यही बात बोलता हूं, तो आपको भी समझना चाहिए कि शेयर करना कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का उद्देश्य हर एक बच्चे तक पहुंचना है, उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन प्रदान करना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव कर लीजिएगा तो आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रणीय है और महत्वपूर्ण है। और इसमें सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि प्रावधान किया गया है वास्तविकता में, ठीक है। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए। जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है रेड का, उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।